Hello students, so this is I, Dr. Neha Jain, and today I'm here online because your results are out, and the students have messaged me that their cutoffs, their mark sheets, like they really performed very well in their examination, and I'm really very happy for all the students who has qualified their NET examination. According to the data which I can see and sorry, which I can see and I can assume that इस बार बच्चे बहुत कम बैठे थे एग्जामिनेशन में. Otherwise in all the examination the normal candidates which used to appear for English literature subjects are almost around lakh, but this time it was only 42,598, that is 42,600 स्टूडेंट अप्रॉक्सी बैठे हैं, जिसमें आपके नेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हैं वो आपके 3088 है. JRF के 648 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं. मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन. The students who have appeared here in this examination for their JRF and have qualified NET. Many congratulations to them also, and my best wishes are with you. I hope in your next examination you all will be able to crack your JRF as well. And those who have already qualified JRF, I will definitely would like to suggest them that they should took some kind of enrollments in their PhDs, because in future your PhDs will be going to benefit you a lot, even more than your UGC NET examination. So it's good to enroll yourself in some kind of research programs. My throat is actually not well, sorry for that. Maybe you will feel that my voice is very heavy today. I have bad tonsils. So in my previous video, I have given you some of the assumed data about the cutoff of your examinations. In percentage and percentile, I gave you a data which was approximately very closer. ठीक है, many students have criticized me also on my channel that I'm just faking out, जनरल वाले तो मर ही जाएंगे, आप ऐसी न्यूज़ क्यों रूमर कर रहे हो, आप डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो. देखो, I am just a simple teacher and being a part of two renowned universities in India, I also have some kind of news, assumptions, and links to many clerical people and associates also, जहाँ से कुछ सोर्सेस से हमारे पास भी डेटा होता है. ऐसे ही हवा में कभी कोई बात नहीं करता, ठीक है. If I have given you some data, if I have told you that what will be the approximate cut off या कुछ भी, आप ठीक है, आपका हक है यहाँ कमेंट करने का. हमने भी ओपन फॉर ऑल कर रखा है, मैं कोई कमेंट हाइड नहीं करती हूँ. कुछ पोस्ट होती हैं जो ऑटोमेटिकली शायद कुछ बैड वर्ड्स के लिए या उनका कुछ ट्रेस करके हमारे पास रिव्यू के लिए आती है, मैं उनको भी अलाउ ही करती हूँ. कभी उनको हाइड नहीं किया जाता, बिकॉज आई सीरियसली डोंट वांट टू मेक यू फील लाइक दैट यू आर अनवांटेड हियर. आप जैसा भी सोच रखते हैं वो आपका सोचें, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है. काफ़ी लोग हैं यहाँ क्रिटिसाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मैं सबका जवाब यहाँ देती हूँ. It is really not possible for me even to answer each and every comment. So my staff is always there to respond you very respectfully. They never insulted anyone. बट आप लोगों ने कहा था कि मैम आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपके जो डेटास हैं वो गलत हैं, आप बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं. मैंने आपको कहा था, मैंने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का पेपर देखा है, उसके बाद ही उनके जो मतलब देखा है इन सेंस कि बच्चों ने मुझे कम से कम नहीं तो 30-40 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट बता रहा था. तो मेरे पास 60 to 70 क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड उन्होंने एग्जाम के बाद दिया था वो हर क्वेश्चन पेपर का शिफ्ट का था. उसी बेस पे मैंने आपको बताया था. मे बी किसी बच्चे को शिफ्ट 1 का बहुत ईजी लगा, किसी को शिफ्ट 2 का बहुत ईजी लगा. ये आपकी नॉलेज पे है. आपको लगता है शिफ्ट 1 का तो बहुत हार्ड था, शिफ्ट 2 का बहुत ईजी था. कोई कह रहा था शिफ्ट 2 में तो 10 क्वेश्चन उन्होंने
रॉन्ग एक्सेप्ट करके 20 नंबर फ्री के दे दिए। फ्री के कैसे होते हैं नंबर? मुझे कोई बताओ, फ्री के नंबर कोई कैसे होते हैं? ये तो है नहीं कि 100 नंबर पे तो अलग जजमेंट चल रहा है और 10 क्वेश्चन के 20-20 मार्क्स फ्री के दे दिए। फ्री का कुछ नहीं होता, उनके आंसर्स गलत थे, उन्होंने उसे एक्सेप्ट करके वहां दिया। और अगर ये होता तो कट ऑफ और हाई जानी चाहिए थी, फिर तो सबके 20-20 नंबर बढ़ गए। ऐसा नहीं होता। पेपर इस शिफ्ट 1 का भी और शिफ्ट 2 का भी, देखिए जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए वो पेपर मुश्किल है, जिसको आ रहा है उसके लिए वो पेपर आसान है। दोनों ही शिफ्ट में बच्चों ने क्वालिफाई करा है, इक्वल लेवल पे क्वालिफाई करा है। तो प्लीज़ आप कहीं भी डीमोटिवेट नहीं होइए, उसकी जगह कोशिश कीजिए कि जिन पोर्शंस में आपको क्वेश्चंस नहीं आए आपकी प्रोफिशिएंसी उसमें बढ़े। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने कमेंट किए कि क्रिटिसिज्म और थियरी के तो फ्री के मार्क्स होते हैं, वो तो बहुत इजी होती है उनकी, बहुत ऐसा नहीं। आपको क्रिटिसिज्म और थियरी बहुत आसान लग रहा है, किसी बच्चों को तो कई बार में समझ में भी नहीं आती क्रिटिसिज्म एंड थियरी। पूरा कॉलेज वो लोग क्लियर करके यहाँ एग्जाम देते, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म और थियरीज नहीं आती। तो आप प्लीज इस तरीके के कॉमेंट्स यहाँ नहीं कीजिए। मेरा सजेशन ये है कि सिर्फ आप अपना जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो व्यूज है वही यहाँ लिखिए। ठीक है, ये नहीं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। नो, इट्स नॉट अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे केवल हम कमेंट्स को ही वेलकम कर सकते हैं। एनीवेज, अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो प्रिडिक्शंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में करे थे परसेंटाइल को लेके, आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ किस तरीके के परसेंटेज और किस तरीके का परसेंटाइल दिया गया है। PWD का तो काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट वगैरह का अलग जाता है, उनका अलग जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके 25 से 30% से लेके और 45% तक वेरी कर रहा है। काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है PWD की, तो अलग अलग कैटेगरीज में गया है इनका काफ़ी रिजल्ट। और उसको डिस्कस करने का कोई वो है नहीं, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट डेटा उसका है भी नहीं, कोई मेरे पास PWD कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट नहीं था जिसका मैं आपको दे पाऊँ। SC/ST में जो है वो आपका कट ऑफ जो गया है वो अप्रॉक्सीमेटली 51% तक गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट है जिनका 75-76 स्कोर था उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उसके अंदर। आपका परसेंटाइल जो है वो 78 गया है इसमें। हाँ, OBC का जो आपका कट ऑफ गया है दैट इज नेट का जो कट ऑफ है दैट इज 89 परसेंटाइल। तो उसमें आप परसेंटेज अपने 53 मान के चलिए। मैंने आपको यही अप्रॉक्सीमेट बताया था कि 53 से लेके 54-55 तक का ये रहेगा, और वही 53-54% का इनका कट ऑफ गया है। और जो JRF का गया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 58%। सिमिलरली आपका जो नेट का अगर हम अनरिजर्व्ड के अंदर या EWS का लेते हैं, तो EWS का जो परसेंटेज गया है आपका कट ऑफ का नेट का, वो आपका ज़्यादा नहीं गया है। EWS का आपका 55% या 91 परसेंटाइल है, वो आपका नेट का गया है। और जो JRF का गया है दैट वाज 58। इसमें आप ये लगा लीजिए कि अराउंड 57-58% तक आपका इसका कट ऑफ गया है। नेट का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आपका 58-59% अराउंड गया है। मैंने आपको वही 59 से 62 के बीच का रेंज बताया था जनरल का, 59%। ठीक है, दैट इज अराउंड 56% आपका इसका कट ऑफ गया है परसेंटाइल। एंड 99 परसेंटाइल आपका जो 99.4 परसेंटाइल आपका JRF का कट ऑफ गया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 63-64% ऑफ JRF। ठीक है। हाँ, इसका शायद मैंने अज्यूम हाई किया था, 66 तक मैंने आपको बताया था, 65-66 अराउंड जाएगा, बट ये शायद 64% पे इसका कट ऑफ हुआ है। तो फिलहाल many congratulations to all the students who have qualified, and I'm really happy those who actually trusted me, who actually believed me, my predictions. They worked on the same, and many students are now sharing their results because मैं बच्चों को प्रिपरेशन इन्हीं हाई कट ऑफ जो आपके हिसाब से बहुत डीमोटिवेटिंग परसेंटेज था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को इन्हीं डीमोटिवेटिंग परसेंटेज के हिसाब से प्रिपेयर किया था। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड, दे आर शेयरिंग देयर रिजल्ट्स, एंड नाउ we are just waiting for the day we can see their response sheet and question paper and answer, so that a proper evaluation can be done.
अभी उसी चीज का बस वेट है. बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू who are listening to me, who have listened to me. And if any of you have any kind of query regarding your results, regarding your response sheets, or anything, then you are always free to call us regarding the solutions of your queries, and whole and open heartedly we will solve your queries. So thank you so much.